I hope the concept which I just had given you for your life success, that is triple D. If you want to repeat, I can repeat it once again. You follow the protocol of triple D in your life, that is devotion, dedication, and discipline. Discipline life make you to do every task well on time. Devotion means your interest and dedication means your hard work toward completing that task in a proper way. So as I told you that you had completed your three parameters of the educational path, that is foundational UKG, then is primary 1 to 5, and then is middle, that is 6 to 8. Now you are becoming in the senior section 9th onward. This is the base for getting your professional choice. अगर आप अपनी प्रोफेशनल चॉइस लेना चाहते हैं तो 9th is a base. So for all the subject you have to be very conscious, you have to complete all your tasks well on time and do all the tasks in a proper way. So with this, I am going to start with the concept. Hope you have your books with you. Geography book, Contemporary India. And from that first chapter, I am going to start, that is India, Science and Location. It's very simple. From 4th onward, हम लोग 4th में अपना chapter ये start करते हैं. India, country are India. 4th concept 4th क्लास में पढ़ा, उसके बाद 7th में भी हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद 8th में भी हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, और अब हम 9th में इसकी लोकेशन प्रॉपरली पैरामीटर में देखेंगे. ठीक है? Is it clear to everyone? Just give me your reply, say yes or no if you can. If you can give your reply by unmute yourself. Yes, ma'am. Right. So first chapter I'm going to start, that is India, Science and Location. अब देखिए, आप लोगों को आज मैं प्रॉपर ही कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करवाऊंगी. आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ ऑफ द प्रीवियस लर्निंग एंड अ कंसेप्ट फॉर डूइंग इट इन अ न्यू वे. अब मुझे ये बताइए, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अर्थ एज अ होल एंड उसमें हमने उसका साइज एंड लोकेशन को देखना है कि कहां पर हमारा इंडिया है. इंडिया इज इन विच हेमिस्फीयर? Is anyone is able to give me answer for the same? India lies in which hemisphere? Northern hemisphere. Northern hemisphere. Very nice. Northern You hemisphere. are very intelligent. So I'm just going to draw Earth. Is it visible? Now here I am going to draw. This is what? 0 degree equator. Equator line. So this is Tropic of, बताओ? Cancer. Cancer. Tropic of Cancer. Cancer, and this is Tropic of Capricorn. Capricorn. So, okay, these are at 23 degree north, 23 degree south. This is 66 degree south, and this is 66 degree and south, and this is north and this is south. ये है हमारा पैटर्न. These lines show the latitude of the earth. ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक सेट बना रही हूँ, ग्रिड सिस्टम. These are the vertical lines. ये कौन सी लाइंस हैं? Longitude. इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. वेरी नाइस. लेकिन एज अ न्यू इसको लॉन्जिट्यूड कहा जाता है. न्यू कंसेप्ट विच इज बीइंग गिवन बाय CBSE आल्सो, दैट वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज अ लॉन्जिट्यूड. नो डाउट हमने भी लॉन्गिट्यूड ही पढ़ा हुआ है,
और हम लोग बेसिकली 95% जो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग रीडिंग में भी जब कंसेप्ट पे जाते हैं तो हम इनको लॉन्गिट्यूड ही बोलते हैं। लेकिन सीबीएसई ने एक वर्कशॉप के अंदर हम लोगों को ये समझाया था कि फॉर द न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हम लोगों ने इनको क्या करवाना है, लॉन्जिट्यूड। क्या कहना है हमने, लॉन्जिट्यूड। फॉर यू पीपल अपने आप की हैबिट डेवलप करो इसको लॉन्जिट्यूड कहने की। इज इट ओके? सो दीज आर द ग्रिड्स which are being created as an imaginary line to get the location properly on the earth. Is it okay? So हमारे अर्थ का जो एक्सटेंट है, हमारे इंडिया का जो साइज एंड लोकेशन है, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 0 डिग्री के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉर्थ को जाता है, 0 डिग्री के जो नीचे वाला पोर्शन है, इस डिग्री के नीचे जो है वो साउथ को जाता है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट लाइन जो हमारे बुक का कंसेप्ट है, दैट इज इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट। अब यहाँ पर एंशियंट का मतलब क्या है, बहुत पुराना। लाइक इंडिया इज अ लैंड ऑफ ऑल द फीचर्स, फिजिकल फीचर्स। हमारे फिजिकल फीचर्स वर्ल्ड में कितने हैं पता है? इज एनीवन एबल टू आंसर मी फॉर दिस? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया या वर्ल्ड? Anyone? मैम माउंटेन। हाँ बोलो बच्चे। फिजिकल फीचर हमारे वर्ल्ड में कितने हैं? फिजिकल फीचर मतलब माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया, आइलैंड्स हो गया, डेजर्ट हो गया, घाट्स हो गया। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो हैं ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और सेम द फीचर वी हैव इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेजर्ट है, डेजर्ट इज थार डेजर्ट। उसके बाद हमारे पास प्लेन्स हैं, प्लेन्स आर नॉर्दर्न गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। उसके बाद हमारे पास प्लेट्यू है, प्लेट्यू हमारा जो है डेक्कन प्लेट्यू है जो हमारे इंडिया के साउथ में आता है। उसके बाद हमारे पास घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, देन कोस्टल एरिया एडजेसेंट टू दैट साइड, वो जो सारा है उसमें वो हमारा एक फीचर है। और उसके बाद आइलैंड्स है, वो हमारा एक फीचर है। एक बच्चा मेरी हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा बच्चा मेरी? So types of physical features are clear to you? Physical feature हमारे जितने भी पूरे वर्ल्ड के फिजिकल फीचर हैं वो सारे के सारे हमारे भारत में भी हैं। अभी मैंने लोकेशन नहीं बताई है। अब आ जाइए लोकेशन। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर एंशियंट वर्ड आया है फर्स्ट लाइन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशियंट? एंशियंट सिविलाइजेशन, दैट इज civilization before the मतलब very old civilization which was developed over here. सेकेंड आ जाता है, it has achieved multi-phased, multi-phase मतलब बहुत सारे phases। सोशियो, हमारे भारत में सामाजिक बहुत सारे अलग अलग कल्चर है सामाजिक। सेकेंड आ जाता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एज वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स टू अर्निंग, टू अर्न, हमें पैसा कमाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं। कौन कौन से मोड्स हैं? दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इट मींस हम लोग खेतों के अंदर काम करके एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जॉस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग, वो हम प्राइमरी सेक्टर से अर्निंग करते हैं। सो वी हैव मल्टी फेस सोशल, सोशल मींस डिफरेंट कस्टम्स आर देयर, डिफरेंट लैंग्वेजेस। डू यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? एनीवन? एनीवन आइडिया दो? 21। ये 21 ठीक कह रहे हो, 21 ऑफिशियल है, वैसे जर्नल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? डू यू नो? वी हैव मोर देन 1500 लैंग्वेजेस।
बेटे सुन लो, इशिता, note down it. We have more than 1500 languages. हमारी एक लैंग्वेज जो है वो 5 कोर्स के बाद जाकर बदल जाती है. एग्जाम्पल देती हूँ. वी आर लिविंग इन द द्वाबा रीजन. पंजाब के 3 रीजन्स हैं, द्वाबा, मालवा, माझा. ठीक है, हमारे रीजन के अंदर, हम लोग जो द्वाबा रीजन के अंदर रहते हैं, वी आर लिविंग इन बिटवीन ब्यास रिवर एंड सतलुज रिवर. हम लोग इसके बीच में रहते हैं. सो वी आर कंसिडर्ड एज अ द्वाबा पीपल. हम लोग अगर लुधियाना में जाते हैं तो लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन आता है पंजाबी लैंग्वेज के अंदर से, यस और नो. और अगर हम अमृतसर जाते हैं तो वहां थोड़ा सा लैंग्वेज आता है. सो अकॉर्डिंगली दिस, हम लोगों की लैंग्वेजेस जो है वो हर 5 कोर्स के बाद बदलती रहती है. अकॉर्डिंग टू इट वी हैव मोर देन 1500 लैंग्वेजेस. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ, उस टाइम पर लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन द रिकॉग्निशन टू द 21 लैंग्वेजेस. यू वर राइट, वी हैव 21 लैंग्वेजेस. वी हैव गिवन द रिकॉग्निशन टू द 21 लैंग्वेजेस. पंजाब की पंजाबी को एक लैंग्वेज, जबकि इनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको मर्ज कर दिया गया, एक ही लैंग्वेज बना दिया गया. इन द सेम वे, अब पहले आपको कितने टाइप्स के फिजिकल फीचर्स बताए थे? 7 टाइप्स, शायद याद होगा. याद है? 7 टाइप्स के फिजिकल फीचर्स बताए थे. एक और फैक्ट बताती हूँ. वी हैव 7 रिलीजन आल्सो in the world, and all that 7 religions are existing in India also. कितने रिलीजन हैं हमारे? Just try to name it. Try to name it. Hindu, Muslim, Sikh, Christianity, Buddhism, Jainism, and Persian. Is it okay? Is it okay? So 7 religions which are there in the world are also existing in India. So India is multi-phased social, इकोनॉमिक. हम लोग हर एक का अपना अपना इकोनॉमिक पैटर्न है, अपनी अपनी अर्निंग का. कोई खेतों में फसल बना के, आप देखो जिन्होंने फसल लगाई हुई है, आजकल कौन सी फसल हो रही है खेतों में? कौन सी फसल दिख रही है? अरमान कपूर, जस्ट टेल मी, कौन सी फसल खेतों में देख रहे हो आप? विच क्रॉप इज ग्रोन इन एग्रीकल्चरल फार्म एरिया? कौन सी फसल देख रहे हो बच्चे? आजकल घूमने जाते हो, खेतों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते होगे. यस नूरजोत? Ma'am, it's wheat. Wheat. Wheat is a rabi crop which is grown in the month of October and harvested in the month of April. और अप्रैल की कौन सी को? बैसाखी, 13 अप्रैल आने वाली है ना, आफ्टर 9 days. So it's ready to harvest. जो ही क्रॉप है, it's ready to harvest. जो farmers हैं, they grow their crop and harvest according to the time, as we have 3 types of crops in a year. One is rabi crop, which is going to be harvested this time in April. Then kharif crop. Then in between that there are 2 months. अब रबी के बाद क्या होगा? साथ के साथ धान की खेती नहीं शुरू होगी. पैडी क्रॉप, राइस जिसको हम बोलते हैं, खरीफ क्रॉप, वो शुरू नहीं होगी, वो होगी जुलाई के बाद. लेकिन इन बिटवीन दैट हमारे पास 2 मंथ्स होते हैं. उसमें हम कौन सी क्रॉप लगाते हैं? दैट इज हाँ जी, दैट इज, हम कौन सी क्रॉप लगाते हैं? जैड क्रॉप. जैड में आ जाता है मेलन, मस्क मेलन, पोटैटो, और कई बार हमारे पास मेज भी आ जाता है. ठीक है. सो ये क्रॉप जो है जो 2 महीने के अंदर अंदर लगाई जाती है. सो अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें जो है हमारे पैटर्न में इंक्लूड होती है. मैं अभी कंसेप्ट नहीं करा रही हूँ, बेस बता रही हूँ आपको इस चैप्टर का. थर्ड लाइन आती है, इट हैज मूव फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, in the field of industry, technology and overall economic development. अब देखो भारत, जब हम पैदा हुए थे, क्या हमने कभी सोचा था कि हम इस तरह से डिस्टेंट वे में पढ़ाएंगे? क्या हमने सोचा था?
And when we were in the 7th class, whether we had imagined that students will be at home and teacher will taking class from the technical mode, whether we think we had this thing in our mind? No. But the time, the period, because समय क्या है, ये नियति है, ये बदलता रहता है. A time cannot remain same. Time will always be in a changing mode. और वो हमें नया नया कुछ ना कुछ सिखाता है. In this way, we are going to change from decades to decades. Decades क्या होता है? 10 year का एक span. Decades to decades. हमारा इंडिया आजाद हुआ 1947 में. उसके बाद अब तक का देखियो, अगर हम देखें तो बहुत सारी जो है टेक्निकल डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत सारी हो चुकी है. So, India has also contributed significantly in making the world history. हम लोगों ने संसार की हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा contribution दिया है. Like if I'll talk about the World War I, World War II, उसमें भी हमारा contribution बहुत ज्यादा रहा है. That we will discuss later. Now, location. अभी मेरा topic जो था, that is India lies in the northern hemisphere. अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये ग्रिड सिस्टम दिया जिसमें जो इस तरह से बैठी हुई लाइन है, पंजाबी में समझाऊंगी, जो लेती हुई लाइंस हैं दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई लाइन है दैट आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड. ठीक है. सो इंडिया लोकेशन जो है, अगर 0 डिग्री से देखें तो हमें ऊपर जाना है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया की लोकेशन. अगर आप देखें तो इट इज फ्रॉम 8.4. अगर आप देखें अपनी बुक पर 8.4 डिग्री. अभी देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है 8.4 नॉर्थ टू 37. अगर मैं इसके ऊपर ऐसे बना 37 डिग्री 6 नॉट, यही है. यानी कि 0 से 8.4 में ऊपर चली जाऊं और 37 यहां तक चली जाऊं तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा इंडिया यहां पर लाइन कर रहा है. ठीक है. उसके बाद अगर मैं लॉन्जिट्यूड देखना चाहूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके अकॉर्डिंगली मैं देखना चाहूं तो दैट इज 68 डिग्री 7 से 97.25. आपने देखिए ईस्ट टू 97.25 ईस्ट. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए 0 डिग्री लें, सेंटर वाले को 0 डिग्री लें तो हमारा ईस्ट इधर को जाता है. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. तो यहाँ से हम 68 डिग्री यहाँ तक गए, वहां से कितना जाएंगे, 97 जाएंगे, तो हम 97 यहाँ तक चले. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक का लोकेशन जो है वो हमें हमारे भारत का देना है. एक्सटेंट लोकेशन का पॉइंट समझ आया बच्चे? से यस और नो. अनमोल, अंशुमन, समझ आया? ये आपने लोकेशन जो है, इसका एक्सटेंट जो है ये लर्न करना है. दैट इज 0 से ऊपर 8.4, क्योंकि हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में से निकलती है. डू यू नो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में से निकलती है कि नहीं निकलती? Yes, ma'am. निकलती है. सो हमारे लोकेशन के हिसाब से हम 8.4 से स्टार्ट कर रहे हैं और 38.7 हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेंटर में हमारी लोकेशन आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, बिल्कुल सही. उसके बाद मैंने इसकी ये जो लॉन्गिट्यूड, ये हमने लैटिट्यूड मेजर कर दिया. उसके बाद लॉन्गिट्यूड के लिए हम कह रहे हैं 68.7 से 97.25, यानी कि 0 से हम इधर जाएंगे, ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है तो हम इधर जाएंगे. ठीक है. इधर जाएंगे 0 से हम इधर के 68 तक और 68 से 97 तक का लोकेशन जो है वो हमारे इंडिया का है. यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक on page number 1. Just have a look over here.
अगर हम पूरे ग्रिड के हिसाब से देखें तो हमारा इंडिया जो है वो हमें यहाँ पर लोकेट कर रहा है एज पर द गाइडलाइन वी हैव फ्रेम. दिस इज द वर्किंग ऑफ ग्रिड, imaginary lines which are being created to set out the location of a particular country. Now, India is considered as a subcontinent. कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में? कितने कॉन्टिनेंट है? Do we know? 7 continents. 7. पर मैं कह रही हूँ भारत जो है एक सब कॉन्टिनेंट है. Can anyone give answer for the same? India is known as There are states states. तो हर एक में है. USA में भी 50 states. states of different cultures. No बेटा, सब कॉन्टिनेंट क्यों है? फैक्ट बताती हूँ. All the physical features are there. Mountain, plateaus, plains, deserts, coastals, islands, everything. और different religion, मैंने बताया जितने वर्ल्ड में वो सारे के सारे हैं. All type of forest are also there. Forest पता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े हुए हैं? 7th क्लास में पढ़े थे शायद. शायद पढ़े थे. 9th चैप्टर था हमारा 7th क्लास में. याद आ गया? वही तो क्लास हमने स्कूल में अटेंड की है. ठीक है. सो सारे फीचर्स जो एक कॉन्टिनेंट को बनने के लिए चाहिए वो सारे, और हमारे सीज और ओशंस जो है वो हमारे इंडिया को लगते हैं. लगते हैं? लगते हैं. अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ विजिबल है, छोटा सा बना देती हूँ. इतना पार्ट जो है यहाँ से लेके ये सारा एरिया किस चीज को लगता है? ओशंस है. From this side we have Arabian Sea, here we have Yes, ma'am. Indian Ocean, and here we have Bay of Bengal. So due to this, India is having all the features to be called as a subcontinent. Is it okay? Location समझ आया? Location समझ आया बच्चे? कोई doubt? Any doubt to anyone? for Yes, now? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now size. इंडिया का साइज जो है that is 3.28 million square kilometer according to the world. हमारा इंडिया पूरे संसार का कितना किलोमीटर लेता है? That is 3.28 million square kilometer. ये लर्न करना है 1 मार्क के लिए. For 1 mark, this question will be there. So, according to the world's size, it is covering 2.4 area. कितना परसेंट एरिया करता है? पूरे संसार का जितना लैंड मास है उसका सिर्फ 2.4% एरिया जो है वो कवर करता है. कितना एरिया? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. और उसके बाद 2.4 एज अ ज्योग्राफिकल एरिया परसेंट. 2.4 as a geographical area. कोई डाउट यहाँ तक? आज मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज करवाया है. अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद द सेकंड पेज इन द नेक्स्ट क्लास. कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. हाँ जी. नाउ लुक एट पेज नंबर 3. अच्छा, एक और काम देखनी है तुम लोगों को. कैन यू डू वन थिंग? आप लोग एक काम करोगे? एक तो हमने अपना सिलेबस जो है वो आपको शेयर हो जाएगा. लाइक इन दिस PT1 वी विल बी कवरिंग ऑल 4 chapters. One is India size and location. Second from history book, that is the French Revolution. Third from civics book, that is what is democracy and why democracy.